हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन? कैसी पढ़ाई चल रही है? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में मन लग रहा है? सो इन दिस 26th lesson of sales distribution management, I will teach you what are the different kind of intermediaries. Earlier I had given you bird's eye view. In this little more detail I will tell you. उसमें मैंने बताया कि कितने तरह के होते हैं, उसका क्या काम है. नाउ यू विल नो दैट डिटेल, little more into it. C&F and CSA. उसमें first intermediary is C&F or CSA. What is C&FA and what are CSAs? C&F is, as the name says, this is collecting and forwarding, carrying and forwarding agents. Okay. You can say carrying and forwarding agents or collecting and forwarding agents. तो इसका मतलब क्या हुआ? Collecting, it is collecting from company, and forwarding means to the intermediaries. What are those? Distributor, dealer, retailers, anybody. हाँ. तो दिस इज C&F. तो ये काम करने के लिए क्या करेंगे वो? उनको चाहिए रेंट या उनको चाहिए कमीशन, कुछ तो चाहिए. तो इट डिपेंड्स ऑन द company what kind of agreement they do. They will give rent, monthly rent, something like that, minimum amount. Plus, generally it happens that whatever amount of sales, minimum sale is happening, for that they may not give anything, but above that, whatever extra amount is done, for that they will give some rate wise, that for this much amount, this much money, for this much uh, amount of sale or this much quantity of sale, this much extra you will get, something like that. That agreement is made. तो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट इज द फर्स्ट इंटरमीडियरी आफ्टर द कंपनी. इनके पास क्या होगा? एक वेयर हाउस होगा. उसमें क्या करेंगे? ये बल्क में अपना प्रोडक्ट रखेंगे. अब यू आर मेकिंग मारुति कार इन मनेसर, इन हरियाणा, है ना? एंड इट इज सोल्ड ऑल ओवर द कंट्री. सो इन ईच स्टेट it is required, and that quantity should be in huge also. Maruti is a leader in car market, and in each state, whoever starts buying car, सपोज आज हमें पैसा हो गया, कल तक मैं टू व्हीलर से चल रहा था, पहले पहली कार लेनी है, तो पहली चीज क्या दिमाग में आती है? मारुति ले लूं. तो मारुति जब लीडर है और इतना बड़े क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी दे आर सेलिंग, देन ईच स्टेट शुड हैव वेरी गुड क्वांटिटी स्टॉक ऑफ द cars, automobiles. So they will need this C&F. Their role is to keep the stock, company's stock, and bill on behalf of company to the dealers, distributors, retailers, whoever is that. So, and one more thing is that pre-GST era, what was happening in each state, you were, it was compulsory for you to open, to keep a C&F. Why? Because the sales tax structure was different for in each of the state. सब स्टेट में अलग अलग होता था. जीएसटी आने के बाद क्या हुआ? सब कॉमन हो गया. तो इससे क्या फायदा हुआ? नाउ नंबर ऑफ C&F is reduced. Not required to keep so many C&F. In each state, compulsorily, you need not keep one C&F. You can handle with one CNF in each region, you can say. Suppose you have got four regions, you make four CNF. If your volume is so low, then if your volume is very high, then you can make warehouses or CNF more as per your convenience. तो ये फायदे हो गए. दूसरा क्या है? कंसाइनमेंट सेलिंग एजेंट, CSA. व्हाट इज CSA? CSA तो भी C&F का ही काम करेगा, लेकिन उसमें एक चीज और ऐड है, वो सेल भी करेगा. अपार्ट फ्रॉम कीपिंग द प्रोडक्ट्स इन देयर वेयर हाउस, दे विल ऑल्सो डू दिस सेल्स. तो इनकी कमाई दो तरफ से होगी. एक तो उसका रेंट का भी ले लिया, और दूसरा सेल से भी, है ना, सेल ऑफ द गुड्स.
सॉरी। नाउ कम टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, स्टॉकिस्ट, एजेंट्स। हाँ, ये हमारे क्या है, मेन सेलिंग एजेंट्स, मतलब समझो, अगर ये लोग खुश हैं तो आपका बिजनेस बस चलता ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इनको आप खुश नहीं किए तो आपका बिजनेस ठप, कभी आगे नहीं बढ़ सकते आप। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर्स या स्टॉकिस्ट के हाथ, उसके इशारे पे आपको नाचना है, लेकिन इन्हीं के बदौलत आपको बिजनेस करना है। इनको खुश भी रखना है और इनको स्ट्रिक्ट भी रखना है। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटर? पीपल गेट कंफ्यूज विद डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, है ना? आपको भी कंफ्यूजन होता होगा। सो व्हाट इज दैट? Distributors, they are required to invest the products by buying it from the company. They are on commission, margin, or markups. They may or may not get credit from the company, however, give credit to the wholesaler and retailers. Commission or margin is a percentage of the price at which they buy the product from the company. What did you understand? Is very clear? डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, बड़े एरिया के लिए बनाते हैं। दे कीप वेरी ह्यूज स्टॉक, दे गेट वेरी स्मॉल मार्जिन, 1%, 2%, समथिंग लाइक दैट, एंड दे कैन गेट क्रेडिट फ्रॉम द कंपनी because they are very big businessmen, very reputed person of the state. You may keep one or two distributor in a state. If your volume is enormous high, like HUL, Patanjali, then P&G, Nestle, their sale is very, very high. Gillette, they can keep three, four, five distributor in big states. So distributors are getting commission on or margin as a percentage of the price. Percentage होता है उस पे, जो मार्कअप प्राइस होगा उससे 1%, 1.5%, 2%, समथिंग लाइक। लेकिन उनका रोटेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर उन्होंने मान लो 1 करोड़ रुपए आपके बिजनेस में लगाया है, तो उसको साल में 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 15 टाइम्स उसको रोटेट करेंगे। एंड व्हाट इज स्टॉकिस्ट? Distributors work in the markets and redistribute the stocks to the customer. Who are their customer? Wholesaler and retailers. उनको डिस्ट्रीब्यूटर देता है, जो प्रोडक्ट कंपनी ने उन्हें दिया है वो किसको देगा, बेचना है उसको भी, तो वो होलसेलर और रिटेलर को बेचता है। जबकि स्टॉकिस्ट क्या करता है, दे मे जस्ट इन्वेस्ट इन द प्रोडक्ट्स but expect the company to sell the products to the customers. They will not sell, they will expect that company people should sit there and sell the products, है ना? तो ये चीज आपको समझना है। होलसेलर्स, व्हाट इज होलसेलर? एक्चुअली होलसेलर, दे आर नॉट हैविंग एनी एग्रीमेंट विद द कंपनी। और ये क्या करता है, ये मेन मार्केट या सिटी में होते हैं, और इनकी जो डील होती है बहुत सारी कंपनियों के साथ होती है। They choose and decide what product they will sell. They are not on contract with any company. As I told you, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इनका। एक एक होलसेलर 10-10 कंपनियों के साथ काम कर सकते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर से रखते हैं कनेक्शन, कंपनी से नहीं। देयर कस्टमर्स आर अदर होलसेलर, रिटेलर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो वो क्या है कि वो किसको बेचेंगे? वो बेचेंगे दूसरे होलसेलर को, रिटेलर को एंड इंस्टीट्यूशन को। वो बिल्कुल फ्री हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। दे negotiate about 15 days credit from the distributor and special privilege on giving purchase request more than once a week, even though the beat plan of the distributor may give them one visit a week. उनका एग्रीमेंट हो सकता है कि एक एक ही बार वीक में बिल करेंगे, लेकिन वो कभी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गया तो एक से ज़्यादा भी कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड है। ये कंपनी के साथ इनका कोई एग्रीमेंट नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के बीच अपना रिलेशन है। और वो क्रेडिट भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि अगर उनका अच्छा पेमेंट टर्म्स होगा और वो अच्छे टाइम पे हम पेमेंट दे रहे हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर उनको क्रेडिट भी दे सकता है। ये उन दोनों के बीच का अपना रिलेशन है। दे एक्सटेंड क्रेडिट टर्म्स टू देयर लॉयल कस्टमर। उनके कौन है कस्टमर? उनके कस्टमर है रिटेलर। और रिटेलर अगर उन्हें अच्छा बिजनेस करके देते हैं और पेमेंट टाइम पे देते हैं, तो दे कैन extend credit to them. Then retailers. Retailers, you know already. What are the retailers? Retailers are the very important place
वेयर लॉट ऑफ पीपल कम, है ना। ये ऐसा पॉइंट है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो एंड यूजर्स हैं वो आते हैं, और बड़ी संख्या में आते हैं। जैसे मॉल है, सुपरमार्केट है, या पुराने किराने स्टोर्स जो हैं, जहाँ उनकी लॉयल्टी बहुत अच्छी है, उनका रिपुटेशन बहुत अच्छा है, वो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे क्वालिटी का देते हैं, प्राइस उनकी अच्छी है, तो वहाँ पे भी कस्टमर्स काफ़ी आते हैं, वेराइटीज ऑफ कस्टमर दे कम देयर। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? You are getting very good collection of customers and you can get the feedback from them. उनकी प्रतिक्रिया, उनके रिक्वायरमेंट, उनके चेंजिंग हैबिट्स, एवरीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड देयर। दैट इज द बिगेस्ट प्लेस वेयर ऑल सेल्स पीपल कैन लर्न what is going on in the market, especially for FMCG. If the retailer is located in a busy part of the market where the consumer traffic is large, he can command a lot of profitable terms from the distributors and companies like credit, promotion, renting display space and so on. ये तो आप सब जानते हैं कि जिसके पास पावर होगा वो कुर्सी पे बैठेगा, जिसके पास ताकत होगा। हम्म। तो अगर रिटेलर बिजी मार्केट में है, जहाँ पे सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लोकेशन है, और उसका सेल भी अच्छा है, उसका रिपुटेशन भी बढ़िया है, तो वो क्या है, आपको टर्म्स कंडीशन आपको डिक्टेट करने लगेगा। वो बोलेगा भाई देखो हमें क्रेडिट दो तब हम आपके साथ बिजनेस करेंगे। वो कहेगा यहाँ प्रमोशन करो अपने प्रोडक्ट का, आप करोगे क्योंकि वो इतना अच्छा जगह है, हर कंपनी वहां पे जाकर के प्रमोशन करना चाहेगी। और उसके साथ साथ स्पेशली इन वॉचेस यू मस्ट हैव सीन दैट दे कीप ऑन काउंटर स्पेशली फॉर पर्टिकुलर ब्रांड, टाइमेक्स, टाइटन और समथिंग, है ना, सिटीजन। सो दे कैन आस्क द कंपनीज कि यू कैन डिस्प्ले योर प्रोडक्ट हियर एंड इट विल बी योर स्टॉक, I'm not going to invest in this. And you will have to pay rent for that. अब आपका अगर कोई शॉप है, उसका रेंट काफ़ी अच्छा है, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकल रही है, देन यू कैन आस्क फॉर दैट। आप पेमेंट निकाल सकते हो उसका। तो ये अच्छा तरीका है। द रिटेलर्स मेक द हाईएस्ट मार्जिन इन द इंटायर सप्लाई चेन। सबसे ज़्यादा अगर कोई मार्जिन कमाता है तो रिटेलर। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कस्टमर को झेलता है तो वो भी रिटेलर है। एंड यूजर्स उन्हीं के पास आते हैं। कुछ भी सुनना होगा कंपनी के बारे में, अच्छा बुरा सब कुछ रिटेलर को सुनना होता है, और सबसे अच्छी कमाई भी करते हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम कम होता है। दे अट्रैक्ट द कस्टमर्स बाय एक्सटेंडिंग होम डिलीवरी सर्विसेज। वो क्या ऑफर कर सकते हैं? होम डिलीवरी मैं कर दूंगा। आजकल होम डिलीवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो क्या है, आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। तो एक तो वह है कि बहुत लोग जाकर सेलेक्ट करके अपने हिसाब से प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, कुछ लोग अपना ऑर्डर कर दिया और चाहते हैं कि हमारे घर पे आ जाए। So that facilities also they are extending. They also do value addition by adding features to the basic product. What is basic product? See, basic product is like PCs and bicycles. हाँ, फ्रॉम द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक पीसी इन पास। पीसी क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। उसमें क्या सॉफ्टवेयर के बिना वो काम नहीं करेगा। विंडोज कौन सा चाहिए आपको, एज पर दैट दे विल पुट इट एंड देन दे विल गिव यू। वैल्यू एडिशन हुआ। दे मे चार्ज यू, दे मे नॉट चार्ज यू। बाइसाइकिल्स बेसिक चीज कंपनी से आ गया, लेकिन उसमें जो एडिशनल फीचर, कैरियर लगाना हो, स्टैंड लगाना हो, या उसमें बेल घंटी लगानी हो, so all these things you put it and then you can charge also. In scooters also they do like that, motorcycles, cars, all these things. So they also add value and then charge you, and you are ready to pay because you want that, है ना। Thank you very much. How was the lesson? Please must write in the comment box. मैं छोटा छोटा लेसन बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगे। So once again I will come with a new chapter, new lesson very shortly. Thank you.